ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਬੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਡਾਇਸ so that we formally welcome our chief guest, Dr. Ashwini Kumar ji. बहुत ही सत्कारयोग ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਨॉन ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਲੈਬ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸਿਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਹਰਾ ਨੇ ਭਰੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ 2200 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 50-50 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਾਲਜ ਆ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਾਂਗ, ਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, they are not having the speeches, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਯੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 4-5 ਘੰਟੇ ਜੇ ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗਰਲਸ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮੈਂਟਲ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਲਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂਟਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਬੜੇ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਾਲਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। Dr. Pooja Tyagi, Assistant Professor, Department of Psychology, Guru Nanak Dev University, Amritsar. She did PhD in psychology. As far as her experience is being concerned, Dr. Pooja Tyagi is a psychologist, researcher, and academician with a significant experience in teaching and applied mental health work. She has worked extensively with Punjab Prison Department, contributing to mental health interventions, suicide prevention strategies, and psychological rehabilitation programs for inmates across many prisons. She has also been involved in developing structured mental well-being modules, conducting assessments, and designing evidence-based suicide prevention frameworks for correctional settings. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ। So, as you know, that the title of today's lecture is Mental Stress, Suicide Prevention and Identification of Warning Signs in Students. So, as sir mentioned, first thing we all must know and we should understand कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स हमारे लिए नहीं है। जस्ट इमेजिन कि स्टूडेंट्स का नंबर जो है 2000 से 1000 हो जाए एंड देन 500 हो जाए एंड देन 100 हो जाए और फिर एक दिन ऐसा हो जब कॉलेज में कोई स्टूडेंट ही ना हो, तो हम सबका क्या होगा? कैन यू इमेजिन दैट? सो विद दैट फीलिंग हमें अपने अंदर से उनके लिए एक जेन्युइन कंसर्न वी हैव टू डेवलप कि हाँ, हम जो हैं इनके लिए हैं, यहाँ पे ये हमारे लिए नहीं है। When we are sitting in some chair ना, when we are sitting in some office और हम चेयर पे बैठे होते हैं, चाहे हम क्लर्क के ऑफिस में है, चाहे हम HOD के ऑफिस में है, चाहे हम टीचिंग की चेयर पे बैठे हुए हैं और कोई स्टूडेंट आता है तो समटाइम वी लुक वेरी डाउन ऑन दो स्टूडेंट्स। हम ऐसे देखते हैं कि ये क्यों ही हमें परेशान कर रहा है। वो हमारे पास किसी हेल्प के लिए आता है, वी आर जस्ट लाइक वी पोस्टपोन इट कि कल आना, परसों आना, बाद में आना, लाइक दैट। हम हो जाते हैं ऐसे, हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एंटायरली कि हम ही ऐसे हैं, कई बार हमारे साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है, हमारा मूड ऐसा होता है, हमारे साथ खुद कुछ ऐसा खराब हुआ है, हमें किसी सीनियर ने बोल दिया, सर ने डांट दिया है, हमारा मूड बहुत बहुत अजीब सा है, या फिर हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं, एंड बिकॉज दे आर लेस पावरफुल देन अस, वो हमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो पलट के हमें जवाब नहीं दे सकते हैं, वो हमारी कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो वी चोज टू से नो टू देम और वी से कि बाद में आना आप। ऐसी ऐसी चीजें हम कई बार कर देते हैं, है ना। हमें पता होता है कि उन्हें जरूरत है, बट स्टिल वी चूज टू डू दैट, है ना। सो विद दैट फीलिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई इन आवरसेल्फ कि हमने कब कब किस किस स्टूडेंट के साथ क्या किया है और हमें आगे से ये वाली चीज नहीं करनी है। द फर्स्ट वेरी थिंग वी कैन डू फॉर स्टूडेंट्स कि हमने उनको अटेंड करना है बहुत अच्छे से। अगर हम उस टाइम पे उनकी हेल्प नहीं भी कर पा रहे ना, एटलीस्ट जेन्युइनली एक स्माइल के साथ हम ये पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, कैसे हो आप ठीक हो, सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी देर में मेरे पास आना, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बस थोड़ी देर बाद पक्का आना आप। हम ऐसे ऐसे वर्डिंग के साथ वी कैन शो कि हाँ, वी जेन्युइनली केयर फॉर देम। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। दिस इज अ सिनेरियो एंड दिस इज अ रियल लाइफ, इट इज अ रियल इंसिडेंट। ओके, एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, बहुत ही प्यारा, अटेंडेंस एकदम फुल, पोलाइट बिहेवियर, अपने सब टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना, और एक दिन उस बच्चे ने क्लास में आना बंद कर दिया और नोबडी आस्क्ड व्हाई, किसी ने भी नहीं पूछा क्यों। आफ्टर 2 वीक्स उसके हॉस्टल के रूम पे ताला लग गया बिकॉज द स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। एंड वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइफ, अपनी जिंदगी में हम इतने बिजी हैं कि कोई क्लास में 3 दिन नहीं आ रहा है, 4 दिन नहीं आ रहा है, 5 दिन नहीं आ रहा है, एंड वी डोंट आस्क कि क्यों नहीं आ रहा है। दैट इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी एट आवर पार्ट। और ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो स्टूडेंट है, ये कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आई थिंक दिस इज रनिंग एट इट्स आवर ओन। कैन यू प्लीज फिक्स दिस? सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कोई भी केस हमारे कॉलेज में ना हो। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम।
Okay, I have to touch this one. I think this is timer based. कौन सी वाली थी वो? बस सेकंड वन, बस नेक्स्ट बस Okay, fine. Okay, so I will keep this session interactive based. ओके हम लोग इंटरेक्शन करेंगे. तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्क पे क्यों हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई हैव मेंशन्ड फ्यू रीजंस हियर, बट हम लोग आपस में भी डिस्कस करेंगे. मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एक रीजन आपको लगता है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है? कोई भी एक रीजन जो आपको लगता है. आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे ही रहिए, ऐसी ही बातें करेंगे. एनी रीजन दैट इज कमिंग टू योर माइंड. फैमिली में इश्यूज होते हैं, वो वाला बर्डन भी वो हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ. राइट. व्हाट डू यू थिंक सर? आपको क्या लगता है? एकेडमिक प्रेशर भी. यस, एकेडमिक प्रेशर होता है उनके ऊपर, एग्जाम का प्रेशर होता है, मार्क्स लेने का प्रेशर होता है. पेरेंट्स की एक आदत होती है, हम इंडियन पेरेंट्स की बहुत गंदी आदत है, हम कंपेयर करते हैं. उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, उसके इतने मार्क्स आए हैं, उसका जेई में एडमिशन हो गया है, उसका इस कोर्स में एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ है. एकेडमिक प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज होती है. आपको क्या लगता है सर? व्हाट इज द अदर थिंग दैट इज बोथरिंग स्टूडेंट्स? एज एन एडोलेसेंट पर्सन जो रिलेशनशिप प्रेशर होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं. यस, रिलेशनशिप प्रेशर बहुत होते हैं आज के टाइम में. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस आर इन रोमांटिक रिलेशनशिप ऑल्सो. और जब स्टूडेंट्स जो है हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इश्यूज होते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन आज के टाइम में जो है मेंटल हेल्थ का अमंग स्टूडेंट्स. मतलब इस रीजन ने कहीं ना कहीं एकेडमिक वाले पॉइंट को पीछे छोड़ दिया है. यस, राइट. यस मैम, आपको क्या लगता है? व्हाट इज द अदर रीजन? lack of responsibility is also. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू वांट टू से, या वो लेना नहीं चाहते हैं? वो लेना नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं. यस. ओके, यस, दैट इज ऑल्सो राइट पॉइंट. सर, व्हाट डू यू थिंक? पेरेंट्स की जो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. यस, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, राइट पॉइंट. पीछे कोई बताना चाहेगा? यस मैम. इंटरेस्ट कम ले रहे. ठीक है. यस, यस, राइट. when students are more associated with the devices, चाहे उनके पास वो मोबाइल है, चाहे उनके पास आईपैड है, या फिर उनके पास आईफोन है, कुछ भी हम ले सकते हैं, वो एक सबसे बड़ा मीडियम होता है डिस्ट्रैक्शन का. आज के टाइम में स्टूडेंट्स की एक आदत बन गई है मोबाइल से स्टडी करने की. एंड व्हेन दे आर टेकिंग देयर नोट्स फ्रॉम मोबाइल फोन, तो ऊपर से इंस्टाग्राम का मैसेज आ रहा है, उधर से व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है. दैट इज क्रिएटिंग ए डिस्ट्रैक्शन इन देयर माइंड. वो चाह के भी पढ़ नहीं पा रहे हैं. एंड उनका जो है एक रेजिस्टेंस इतना लो है कि दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट कि हम उस नोटिफिकेशन को बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना ये चैप्टर जो है, जो भी मैंने पेपर खोला हुआ है, मैं इसे पढ़ लूं. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो कि बैक ऑफ द माइंड में एक विशियस साइकिल क्रिएट करता रहता है एंग्जाइटी का. और उनको पता है कि हम नहीं कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, जो कि मैम ने बात की. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल जब नहीं कर रहे हैं तो इंटरनली एक हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, एक हमारी अंतरात्मा होती है, उसे पता है कि यार पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मनी ऑन अस, हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, बट हम पढ़ नहीं रहे हैं और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से. सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कि हमें लगता है कि यहाँ पे बैठ के कि स्टूडेंट्स ही तो हैं, इनका काम क्या है. यस मैम. Sometimes there is ego issue in students. Yes. Sometimes सारा डिस्कस करता वो होने के बावजूद भी बच्चा अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा पढ़ने के बावजूद भी अगर वो नहीं कंप्लीट भी अच्छा कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे ले रहा है, फिर भी ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ जॉब सिक्योरिटी या कुछ नहीं मिल रहा. This leads to tension, stress, anxiety, depression. Right. मैम क्या होते हैं? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, राइट. सो वी सी देयर आर सो मेनी रीजंस. आप यहाँ से आप लोग कोई मेंशन करना चाहेगा? यस. सोशल मीडिया का इफेक्ट्स बहुत नेगेटिव भी है, बहुत पॉजिटिव भी है. दैट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो पेरेंट्स नीड टू मॉनिटर. वहां से कोई बोलेगा? यस सर. एनीथिंग आपके कुछ दिमाग में हो, कोई बात, कोई पॉइंट हमने मिस किया हो? यस. फैमिली जैसे न्यूक्लियर फैमिली और जो जॉइंट फैमिली में अगर बच्चा होता है वो सीखता जाता है, खेलता भी है, वैसे ही
अगर न्यूक्लियर फैमिली होगा तो अकेले बैठा है, अकेला फोन देखेगा, इधर जाएगा उधर। सिंगल चाइल्ड के साथ इश्यूज क्या क्या हैं, उसको शेयरिंग नहीं आती, उसे केयरिंग भी नहीं आती। न्यूक्लियर फैमिली में ये इशू है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जॉइंट फैमिली में कजन है, छोटे हैं, बड़े हैं, उसे पता है कि हाँ, जैसे बड़े वाला कजन बोलेगा आई हैव टू गो दैट वे, या फिर छोटे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उसे मिल जाती है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मेरे पास कोई खाने की चीज है तो आई हैव टू शेयर दैट। बट इन न्यूक्लियर फैमिली वो वाली चीज नहीं है। शेयरिंग, केयरिंग, लीडरशिप, yes, actually, so somewhere there are so many issues जो कि ये वाली जनरेशन एंड द जेनजीज के बीच में एक बहुत ही बड़ा जनरेशनल गैप आ गया है, दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर आई हैव मेंशन दिस फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन लर्नर। हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर? फर्स्ट जनरेशन लर्नर फॉर एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने आपको पढ़ाया, एंड नाउ यू आर द फर्स्ट जनरेशन इन योर होम हु इज एट जॉब, हु इज डूइंग जॉब। देयर आर सो मेनी ऑफ अस। एंड हमारे स्टूडेंट वाले जो एक क्लस्टर है उसमें भी बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है ना ज्यादा। When they have seen those things consistently in their family, they are like, okay, this is normal. But when they are seeing their parents struggling, and then their parents are providing so much to them, फिर वो कॉलेज आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। एक वो वाली चीज भी उनके ऊपर होती है। फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। उनके लिए अर्बन एरियाज में आना, कॉलेजेस में उस क्राउड को मैच करना, दैट इज वन ऑफ द थिंग। There are so many factors. क्लासेस में आपने कंपैरिजन ग्रुप देखे हैं? क्लास के अंदर देखा आपने, कुछ ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के, एंड द ग्रुप्स दे कंपेयर ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स। इसने ड्रेसिंग कैसी पहनी है, इसका ड्रेसअप कैसा है, इसका मेकअप कैसा है, इसका हेयर स्टाइल कैसा है, ये बात कैसे करता है, इसका बैग कैसा है, इसका पर्स कैसा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि रूरल और अर्बन में काफी डिफरेंस होता है, एंड देयर कैन बी this class comparison can be one of the stress of among students under pressure to succeed financially, and the main problem with our Punjab is substance use. एक हमें ensure करना पड़ेगा अपने colleges में कि exposure ना हो substance abuse का, this is one of the thing. Loneliness, इतने बड़े college में आना, thousands of students are there, but एक अच्छा friend ना ढूंढ पाना, दिस इज वन ऑफ द थिंग। लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू है कॉलेजेस में। एंड फियर ऑफ फेलियर इंक्रीज सुसाइड रिस्क। व्हाट डू यू थिंक, फियर ऑफ फेलियर किसको ज्यादा होता है? इसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज एसोसिएट है, फियर ऑफ फेलियर। व्हाट डू यू थिंक, कौन से स्टूडेंट्स को फियर ऑफ फेलियर होता है? आप में से काफी सारे टीचर्स हैं, आपको पता होगा आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है फॉर श्योर हमने फेल होना है, हमने पास होना ही नहीं है, एंड दे आर लाइक वेरी कैजुअल इन एवरीथिंग, दे आर ऑलवेज हैप्पी, एंड देयर यस, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको पता है कि हमारे फर्स्ट डिवीजन से ऊपर मार्क्स आएंगे, हमारे 80% से भी ज्यादा आने हैं, बट स्टिल दोज आर अंडर स्ट्रेस। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट? हाई एस्पिरेशंस, राइट? और कुछ? Aspiration on part of the parents. Yes, on the part of the parents, and the investment of the parents, and the investment of the student himself in terms of money, in terms of the time. जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए की है, उसका फियर ऑफ फेलियर उतना ही ज्यादा होता है, बिकॉज दे वांट टू गिव देयर बेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। All these things that we are discussing in our class, all these things create a pressure cooker. You know what happens in pressure cooker? क्या होता है pressure cooker में? It keep heating, and there is one short passage. फिर जहां से सारा का सारा प्रेशर निकलता है, that is pressure cooker. स्टूडेंट्स के केस में भी हमेशा ऐसे होता है, there is not a single reason नहीं है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट कभी सुसाइड कमिट करे. That is cumulative effect that we need to understand.
आज अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया है, उसका जो रीजन है वो कल नहीं हुआ था या आज नहीं हुआ था, वो मे बी 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी चीजें, एंड देन थिंग्स कीप एडिंग ऑन एंड एडिंग ऑन, and all these things create so much pressure on a student, and they feel like कि now the life is so hard, कि death is easy. I cannot solve these problems, I cannot handle all these things. Now death seems very easy. मौत को गले लगाना ज़्यादा आसान है इस वाली ज़िंदगी से. So they chose that. So what are the things that create that pressure cooker among students? These are the 3 categories that I have divided. First, academic stressors that we have already discussed, financial and future strains, and social developmental changes. ये एक 3 कैटेगरीज हैं मेन जो कि हम अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. अब इनसे रिलेटेड कौन से साइंस हैं, कौन से वार्निंग साइंस हैं जो हमने आगे देखने हैं. कौन से स्टूडेंट्स हु आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड्स, हु आर द वीक पर्सनैलिटीज. हमें वीक पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई करना है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज. हमारा हार्डी पर्सनैलिटी, इनके साथ कुछ भी हो जाए वो फिर से बाउंस बैक करेंगे, वो फिर से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, वो डरेंगे नहीं. बट कुछ ऐसे होंगे कि आपने उनको डांट भी लगा दी तो शायद वो 3-4 दिन तक कॉलेज से ही गायब हो जाएं. वो इतने मेंटली वीक होते हैं. SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग, जेनजीज में बहुत लो है. जेनजीज आर वेरी लो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस. ये चीज़ हमें एक समझनी पड़ेगी. हम सोचते हैं कि जैसा एक चाइल्डहुड या फिर एक कॉलेज लाइफ या फिर चीज़ें हमने झेली हैं तो उसके सामने तो ये वाली कुछ भी नहीं है, बट हम ये वाली चीज़ भूल रहे हैं कि उनका IQ जो है, IQ मीन्स नॉट दैट टोटल इंटेलिजेंस, उनका सोशल IQ एंड इमोशनल IQ हमारे IQ से बहुत ज़्यादा लो है. उनको इस स्टेज तक आने में शायद 60 या 70 की एज लग जाएगी, है ना. एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम नाउ. सो विद दैट लिटिल इमोशनल इंटेलिजेंट क्वोशेंट वी हैव टू डील. सो नाउ आई हैव this thing. First of all, let's understand what is suicide. Then I will share some suicide notes with you, the real suicide notes जो लिखे हुए हैं. सुसाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई मरना चाहता है. सुसाइड का मतलब है कि इट्स ए वेरी लाउड क्राई फॉर लाइफ. वो एक्चुअल में जीना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट कोई देख नहीं पा रहा है या वो बता नहीं पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू गेट ए एटमोसफियर. उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए. उनके पास कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड नहीं है, पेरेंट्स समझने के लिए तैयार नहीं है, टीचर्स वेलकमिंग नहीं है, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी ऐसी ही गलत उल्टी सीधी ही शिक्षा देंगे उनको. दैट टाइप ऑफ थिंग. सो सुसाइड इज बेसिकली, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो दिमाग में स्टार्ट होता है. कोई भी एक्ट नहीं करता सुसाइड पे. व्हेन द सुसाइड इज एट कॉग्निटिव लेवल, व्हेन द सुसाइड इज इन थॉट्स, दैट इज नोन एज सुसाइड आइडिएशन, हम उसे बोलते हैं. सुसाइड आइडिएशन में क्या है, थॉट्स आते हैं अपने आप को खत्म करने के. और वो खत्म करने के थॉट्स कब आते हैं, जब लगे कि हर रास्ता बंद हो चुका है, कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी. होपलेसनेस टोटली टेक्स ओवर देयर ब्रेन, और उनको अब ये समझ आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हेल्प रिसीव नहीं हो सकती एंड अब कुछ भी नहीं हो सकता. एक ये वाली जो फीलिंग है, और वो जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब वो एफर्ट करना भी छोड़ देते हैं, that is a state that leads to suicide ideation. जब suicide ideation थॉट से, जब वो अपने थॉट्स में, अपने दिमाग में हार मान लेता है, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है सुसाइड अटेम्प्ट करने की. जब वो अपने दिमाग में वो बैटल हार चुका होता है, हार मान चुका होता है जिंदगी से, देन द स्टूडेंट ट्राई. ये वाली स्टेजेस क्या क्या है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, आपको कौन कौन से साइन नोटिस करने हैं, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सुसाइड अटेम्प्ट में 2 चीजें होती हैं. ईदर द सुसाइड अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल या फिर फेल हो जाता है. अगर तो सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, देन दोज आर नोन एज सुसाइडर्स, जो कि जा चुके हैं इस दुनिया से, और वहां पे कुछ भी नहीं बचता है, जस्ट एक ट्रेजिक लॉस है. और सुसाइड इज इरिवर्सिबल, और जो हमारे, उनके जो लव्ड वंस हैं, उनके लिए एक बहुत ही तकलीफ जो है वो छोड़ जाते हैं. बट स्टिल जो दूसरा है, जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रह जाता है, दोज आर नोन एज सर्वाइवर्स. वो सर्वाइव जो कर जाते हैं, वो सर्वाइवल के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां पे होप है
ठीक है, वहां पे जिंदगी बच जाती है और इनके साथ हीलिंग पॉसिबल है, हीलिंग पॉसिबल है एंड प्रिवेंशन पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी कि इन लेटर लाइफ ये लोग दोबारा ऐसा ना करें। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट फ्यू थिंग्स एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट्स हु आर इवन इंच क्लोज टू सुसाइड पैटर्न्स। वो पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। So these are the suicide notes. This one on your right side, this is a newspaper cutting and despair in Kota, 6 students suicide this month. एक month में 6 students ने suicide कर लिया। ये कोई पुरानी सी news है। You know कोटा क्यों famous है? Yes, कोचिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही हाईली एस्पिरेशनल स्टूडेंट वो होते हैं और उनके पेरेंट्स बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके वहां पे उनको भेजते हैं एंड दे वांट टू बिकम समथिंग इन देयर लाइफ। और फिर कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम पेरेंट्स को हम लेट डाउन करेंगे और उससे पहले ही हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। सो कोटा में सुसाइड्स बहुत हाई है। ये इधर एक सुसाइड नोट है एंड सुसाइड नोट एक बच्ची का है। उसने लिखा है मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बना पाती शायद 95%। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम हुआ नहीं है अभी, रिजल्ट आया नहीं है अभी। स्ट्रेस इतना ज्यादा दिमाग पे हावी हो चुका है कि उसने सुसाइड नोट लिखा है, मैं परेशान हो गई हूं इस 10th क्लास से। 10th क्लास की स्टूडेंट है, एग्जाम दिया भी नहीं है अभी। आई लव यू पापा मम्मी एंड ऋषभ, आई एम सो सॉरी। खुशबू नाम की लड़की का, 10th क्लास का बच्चा। कैन यू इमेजिन एक 10th क्लास का बच्चा जिसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत पढ़ना, खेलना, एक्सप्लोर करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ये सब कुछ होना चाहिए, वहां पे क्या है? आपको क्या लगता है ये क्या है? इट इज ए बर्डन। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है यहाँ पे। नहीं बना पाती शायद 95% प्लस लिखा हुआ है इसने, 95% प्लस। पेरेंट्स की ओर से इतनी ज्यादा डिमांड थी, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतने मार्क्स तो लेके ही आने हैं एंड दैट एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड सो मच बर्डन। दिस इज वन ऑफ द थिंग। फर्स्ट थिंग, academic pressure from parents, their expectation is leading suicide among students. Now, so this is very blurred, but I will read it for you. These are the 2 different suicide notes. यहां पे लिखा हुआ है can't live this lifeless life anymore. इसने बहुत सारी चीजें मेंशन करी हैं, स्क्रीन्स, लेक्चर्स, मैसेजेस, मेल्स, merits, deadlines, expectations, this room, that laptop, religion, restrictions, health, family, feelings, theories, equations, numbers, dash 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 me, reasons are many. ये एक कॉलेज स्टूडेंट का सुसाइड नोट है। इस सुसाइड नोट से क्या समझ में आ रहा है? यहां से पता चल रहा है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, इसका प्रेशर कुकर पूरा फिल हो चुका था। एकेडमिक्स का भी, क्लासरूम का भी, उसकी पर्सनल लाइफ का भी, फैमिली का भी, और जो सोशल मीडिया पे वो न्यूज़ कंज्यूम कर रहा है, उस सब ने मिलके उसका दिमाग इतना ज़्यादा भर दिया था कि ही वॉज नॉट एबल टू सी एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ, और उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। और उसने इतना सब कुछ मेंशन करने के बाद भी लिखा है रीजंस आर मैनी, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द सुसाइड फ्रॉम स्टूडेंट जिसका नाम है तेजस। Sorry mom and dad for whatever I did put. I have no other choice other than this. I am unable to pay my loans that on my name. मैं वो loans पे नहीं कर सकता जो कि मेरे नाम पे है। लोन पास करा के इंजीनियरिंग का स्टूडेंट स्टडी करने के लिए गया था। इंजीनियरिंग का आपको पता है फीस बहुत हाई होती है। अब पेरेंट्स के पास वो पैसा नहीं था, उसने लोन पास कराए हैं, वो स्टडी करने गया है और वहां पे जाके शायद उसे लगा हो कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है और इसके लिए मेरे पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, हर महीने EMI पे कर रहे हैं। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, थैंक यू, गुड बाय।
इस सुसाइड नोट से फ्रॉम ए साइकोलॉजिस्ट आई एम इंटरप्रेटिंग कि ये इतना ओवरवेल्म हो चुका था कि ये किसी को एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी नहीं समझ रहा है अब कि मैं क्या फील कर रहा हूं। एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी कंडीशन में, ही इज जस्ट लाइक 19 और 20 ईयर ओल्ड बॉय जो कि 12th पास करने के बाद कॉलेज में एंटर हुआ है। यू सी हम लोग कितना टैलेंट अपना लूज कर रहे हैं टू सुसाइड। द डेमन ऑफ सुसाइड इज eating so many teenagers and our youth in our country every year. So that's why Supreme Court has to intervene कि हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा कि ये क्यों हो रहा है। These are two more. Mommy, Papa, I can't do JEE, so I suicide. I am a loser. I am worst daughter. Sorry, मम्मी पापा। ये जेई में फेल नहीं हुई है ये लड़की। शी वॉज प्रिपेयरिंग, अभी एग्जाम भी शायद इसने नहीं दिया है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕਰ Yes. So reasons are There are so many reasons that we have to understand. When the student is not able to do something, right ma'am, student is not able to do something, but वो कर रहा है क्यों? क्योंकि parents are forcing them, pressure कर रहे हैं। And you know what? Parents have taken these things as their status symbol. उनको relatives के बीच में नाम बनाना होता है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको बाहर कंट्री में जाना है, आपको सीए बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, तभी आप हमारे बच्चे हो, अदरवाइज आप हमारे बच्चे नहीं हो। बिकॉज पेरेंट्स आर यूजिंग देयर किड्स एज देयर स्टेटस सिंबल, दे आर फोर्सिंग देम सो मच। और वो इतने छोटे बच्चे होते हैं कि शायद वो ना जिद भी नहीं कर पाते कि हम नहीं करेंगे या हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि आप मत करो, फीस तो हम देंगे ना, हम नहीं करा रहे आपका किसी और में एडमिशन। And that side, the last suicide note that I have put up in my slide is from a student who is directly blaming his professor. वो अपने प्रोफेसर को ब्लेम कर रहा है for something. So apart from academic pressure, apart from parents, apart from teachers, there are n number of reasons जो कि students को stress दे रहे हैं। एंड तो फर्स्ट थिंग, ये इसके पीछे मेरा एक सुसाइड नोट्स को आपके साथ शेयर करने का एक ही रीजन था कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ये लोगों को भी स्ट्रेस होता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार इनको भी क्या ही स्ट्रेस होगा, इनकी लाइफ में क्या है स्ट्रेस लेने वाला। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये तो बच्चे ही हैं, पढ़ने ही तो आए हैं, इनको कोई स्ट्रेस नहीं है। सो दीज आर द प्रूफ्स दैट यस दे ऑल्सो डू फील। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी स्ट्रेस में होता है, एक हाई स्कूल का बच्चा भी स्ट्रेस में होता है, और विद एवरी पासिंग ईयर, विद एवरी पासिंग क्लास, दैट स्ट्रेस कीप एक्यूमुलेटिंग, क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है कि दे चूज टू टेक दैट टाइप ऑफ स्टेप फॉर विच हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हो रखे हैं। ओके, एनीबडी वांट टू शेयर समथिंग from their personal experience? Is there any mishappening happened in this college kabhi? no. That's very good. It's common in professional institutions. Yes, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पे एस्पिरेशंस ज़्यादा होते हैं। सर मेंशन कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही, ये है यूनिवर्सिटीज़ में भी है, जो हमारे कॉमन कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के, जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के एंड आर्ट्स के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि कुछ स्टूडेंट्स बस ऐसे ही एडमिशन ले लेते हैं कि हमने सिर्फ डिग्री करनी है, हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, शादी करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, या फिर बाहर की फाइल लगाने के लिए सिर्फ BA होना ज़रूरी है, या वो कुछ है। तो वहाँ पे ये वाली चीजें इतनी नहीं होती। बट वेयर स्टूडेंट इज टेकिंग एडमिशन इन प्रोफेशनल कोर्स, मैनेजमेंट में ले रहा है, इंजीनियरिंग में ले रहा है, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग सो मच एंड दे रियली वांट टू बी समथिंग। मैम गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काट के बावजूद भी तो डॉक्टर ने सुसाइड की, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं लगता है। देयर आर सो मेनी रीजंस। यस, रीजंस आर डिफरेंट। ह्यूमन बिहेवियर इज सो कॉम्प्लेक्स कि हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये इस वजह से एक चीज हुई है।
Human behavior is so complex. There are hundred of numbers. Maybe everything is perfect, but still genetically maybe there is possibility कि genetically depression बच्चे ने अपने पेरेंट्स से inherit किया है. उसकी पर्सनैलिटी ही डिप्रेसिव है. नो मैटर हाउ मेनी गुड थिंग्स आर देयर इन हिज लाइफ, वो हमेशा डार्क साइड ही देखेगा, वो हमेशा नेगेटिव साइड ही देखेगा, बिकॉज पर्सनैलिटी इज बायोलॉजिकल ऑल्सो, दैट इज बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो, दैट इज सोशल ऑल्सो. सो बायोलॉजी का जो रोल है, आपके पेरेंट्स अगर बहुत एग्रेसिव हैं तो चांसेस हैं कि आप भी वैसे ही हो. आपके पेरेंट्स अगर बाय नेचर डिप्रेसिव है, कोई भी एक पेरेंट है, कोई भी एक जीन आपने इनहेरिट कर दिया, सो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट. इफ यू हैव अ वेरी सॉफ्ट पर्सनैलिटी और यू हैव अ वीक पर्सनैलिटी, तो आप छोटी सी भी टेंशन से टूट जाओगे. सो देयर आर सो मेनी रीजंस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि हाँ ये वाला बच्चा किस तरीके का है, ये स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसके साथ कोई बात नहीं, फेल भी हो गया, री का पेपर दे रहा है, अच्छे से तैयारी करके दे रहा है एंड ही इज लाइक क्वाइट हैप्पी, वो खूब चिल करता है. और ये बच्चा थोड़ा सा है, पढ़ता लिखता भी खूब है बट फिर भी परेशान रहता है, अकेला सा रहता है, दैट टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो यस, रीजंस आर सो मेनी. हमने स्ट्रेस को डिकोड करना है, स्टेटमेंट और साइन देखने हैं, सुसाइड आइडिएशन हमने आइडेंटिफाई करना है कि दिमाग में आ तो नहीं गया है, थिंकिंग लेवल पे क्या एंटर कर चुका है बच्चे के दिमाग में. अब वो कौन कौन सी चीजें हैं दैट वी हैव टू सी. फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट थ्रेट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं. टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सब लोग ही बी ऑब्जर्वेंट इन कॉलेज. आप जा रहे हो, बच्चे कोई बैठा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहा है एंड वो बातें कर रहे हैं आपस में और उन्होंने बोला कि मैं तो खुद को खत्म ही कर लूंगी अगर ऐसा हो गया तो, या मैं तो अपने आप को मार लूंगा अगर ऐसा हो गया तो, या यार मैं तो मरना चाहता हूं, आई विश मैं आज रात को सोऊं और मेरी कभी आंख ही ना खुले. ऐसी वाली स्टेटमेंट्स अगर आप किसी स्टूडेंट के मुंह से सुनते हो, चाहे वो डायरेक्टली कह रहे हो, चाहे इनको थोड़ा सा मोल्ड करके इनडायरेक्टली बोल रहे हो, दीज आर द इंडिकेटर कि सुसाइड आइडिएशन इज ऑलरेडी इन देयर माइंड. कॉग्निटिव लेवल पे वो एंटर कर चुका है. दिस इज वन ऑफ द थिंग. और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस इज द सेकेंड कैटेगरी, कि जब वो उनको लगे कि अब जो है मैं हार चुका हूं. उसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं. आई कैंट सी ए वे आउट ऑफ दिस, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. अब कोई बच्चा ऐसी बात कर रहा हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं इस सिचुएशन से निकलने के लिए. कुछ टाइम के बाद ना ये सब कुछ मैटर ही नहीं करेगा. कोई ऐसी बातें बोल रहा है, मतलब उसके दिमाग में है कि अगर मैं कुछ टाइम के बाद में सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, उसके बाद ये सारी टेंशन प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी. देयर इज नथिंग एनीवन कैन डू फॉर मी, अब मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता. इन सारी स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने हार मान ली है, उसको अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. देयर इज नो वे द स्टूडेंट इज सीइंग एनी होप. द थर्ड वन इज, उसको लगने लगता है कि मैं वर्थलेस हूं, मेरी कोई वर्थ नहीं है और मैं बर्डन हूं. एक ये वाली जब चीज स्टूडेंट के दिमाग में आती है, इसका मतलब सुसाइड आइडिएशन यहाँ पे आ चुका है, आइडिया यहाँ पे आ चुका है. उसके लिए स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं. मेरे बिना ना सब ज्यादा अच्छे रहेंगे, मेरे बिना मेरी फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी. इवन वो बात फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि तुम सब बहुत खुश हो ना, मेरे बिना तुम सब लोग खुश रहोगे. अगर एक ग्रुप में कोई है और ग्रुप से हटके कोई स्टूडेंट बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि आई एम सच ए फेलियर, आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस दैट, कैन यू प्लीज. या फिर कोई बोल रहा है कि आई एम सच ए बर्डन ऑन माई फैमिली, मैं अपने परिवार पे बोझ हूं. अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर एनी मोर, मैं डिजर्व ही नहीं करता अब यहाँ पे होना. इन सब बातों से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट अब अपने आप को बोझ समझने लगा है और उसे लगता है कि उसका फैमिली या उसका क्लास या उसका जो फ्रेंड्स का सर्कल है वो उसके बिना ज्यादा ठीक होगा. वर्थलेसनेस की एक फीलिंग आ जाती है, बर्डन समझने लगता है खुद को अपने आसपास वालों के लिए. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन होता है. एक वेग सी गुड बाय बोलते हैं, वो बहुत धुंधली सी, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि हम जाने वाले हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है, बट कुछ हिंट दे देंगे हल्का सा, जैसे कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी मच लॉन्गर. अब आपको ना ज्यादा टाइम, ज्यादा देर या ज्यादा दिन मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी,
मम्मी पापा आप बहुत बोलते हो ना, आपको ना कुछ दिन के बाद मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। ऐसी कोई स्टेटमेंट टीचर को बोल रहे हैं कि सर आपको मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है ना, कुछ टाइम के बाद ना आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। या फिर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई विल मिस यू ऑल, मैं आप सबको बहुत याद करूंगा। ऐसी अगर कोई बातें आ रही हैं उसके मुंह से, इसका मतलब एट हिज कोग्निशन लेवल ही इज थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। ये अभी यहीं पे है। अब चीजें ज्यादा सीरियस हो गई हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आसपास वालों ने ध्यान नहीं दिया, उसे कहीं से हेल्प नहीं मिली, और वो जो बैटल दिमाग में जो चल रही थी वो हार गया है। एंड नाउ द स्टूडेंट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल सुसाइड अटेम्प्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई दोज साइंस? आइडिया आने तो बाद, आइडिएशन के बाद कितना टाइम तक बच्चा सर्वाइव कर सकता है, उनके स्टेप को वापस ले आ सकता है? हम उसे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी वापस लेके आ सकते हैं। अगर वो सर्वाइवर है, हमें पता चल गया इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आपने उसकी बाजू पे कोई कट के निशान देखे हैं, या फिर उसने कुछ और तरीके से किया है, या फिर उसने बहुत सारी डिफरेंट फार्मेसी से जाके पिल्स खरीद ली हैं और वो कभी खा के सो गया है और बाय चांस वो बच गया है, पेरेंट्स हॉस्पिटल में ले गए हैं टाइम से, हमें पता चल जाता है कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और ये सर्वाइवर है, हम उसे उस पॉइंट से भी वापस लेके आ सकते हैं। अगर उसको एक प्रॉपर केयर मिले, हम वो सारे इश्यूज रिजोल्व कर दें, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो री अटेम्प्ट ना करे। बिकॉज सुसाइड कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो करना चाहता है कोई, वो कोई खुशी नहीं देती है। सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन। जब उनको लगता है कि कोई और रास्ता नहीं बचा ना, तब वो करते हैं। सो ये नहीं सोचना है कि वो फिर से सुसाइड करेगा, एक्चुअल में कोई नहीं करना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट लाइफ, एवरीबडी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल लाइफ। द थिंग इज दैट हमें जस्ट उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, उनका नजरिया यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट करना है। हमने कौन कौन से साइन नोटिस करने हैं? बीइंग इन टीचिंग स्टाफ एंड इन डोंट टीचिंग स्टाफ। सबसे पहला आइसोलेशन या विड्रॉल। आप किसी ऐसी जगह पे कॉलेज में जहां पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं है, वहां पे कोई स्टूडेंट बैठा है, यार इस एरिया में तो कोई नहीं आता जाता, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ये स्टूडेंट आजकल कुछ ज्यादा ही अकेला लग रहा है। पहले तो ये 2 लड़कियां साथ में रहती थी, अब ये लड़की हमेशा अकेली रहती है। क्या हुआ है? कोई बात हुई है? नोटिस करो। और एक साइन नहीं होता, यूजुअली पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यहां पे क्या है, क्योंकि अभी आइडिएशन जो है वो एक्शन में आ चुका है, एंड द स्टूडेंट विश टू डाई, इंक्रीज प्रियोक्यूपेशन विद एंडिंग वंस लाइफ। वो जो अकेले में जो जा रहा है ना, जो बाकी लोगों से जो दूर हो रहा है, वो सोच रहा है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। तो हमेशा ये चीज देखनी है कि कोई अपने क्लासरूम में क्लासेस होने के बाद भी अकेला बैठा हुआ है, या फिर कोई पार्क में जाके अकेला बैठा है, या फिर आपके कॉलेज में कोई सेक्लूडेड प्लेस है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है जहाँ पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द वार्निंग साइन कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। द सेकंड थिंग, giving away valued possession. In psychology, this is considered one of the most important sign among those people. जब कोई अपनी वैल्यूएबल चीजें किसी को देने लगता है, समझ लो कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जाना है, अब मुझे टाटा बाय बाय करनी है, उसने प्रिपरेशन कर ली है। कोई अपना लैपटॉप दे रहा है किसी को, कोई अपनी बुक्स दे रहा है किसी को, कोई लड़की अपनी फेवरेट ड्रेस या ज्वेलरी किसी को डोनेट कर रही है कि यार तू यूज कर ले, मुझे नहीं चाहिए अब, चाहे वो कोई भी तरीका है। आप ऐसे कुछ नोटिस कर रहे हो कि कोई अपनी बहुत ही खास चीज जिससे उसको पहले बहुत प्यार था, वो शेयर भी नहीं करता था या करती थी, अब वो दे रहा है। कोई लड़का अपना क्रिकेट बैट दे रहा है, या अपनी फुटबॉल किसी को दे रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, XYZ। अपनी बाइक दे रहा है क्योंकि तुझे यूज करनी है, ठीक है ले जा। That type of thing means there is something really very serious. Okay, getting affairs in order, वो चीजों को सेट कर रहा है। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, जो हमें जिंदगी से बांध के रखती है, वो उनसे खुद को आजाद करने में लग गया, वो उस वाले स्टेप पे पहुंच गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्वायरिंग मीन्स। अब क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे वो ऑनलाइन सर्च कर रहा है मेथड्स, पेनलेस डेथ कैसे हो, क्या सबसे इजी तरीका है मरने का, कहां से इलीगल वेपन मिलेगा, कोई देसी कट्टा या देसी हथियार कैसे मिलेगा, या फिर कौन सा पॉइजन खाने से सबसे ज्यादा इजी वाली डेथ होती है, कौन से फ्लोर से कूदने से डेथ पक्का ही होती है,
या फिर किस स्पीड से गाड़ी को आप अगर चला रहे हो, एक्सीडेंट होता है तो कैसे होती है, इस टाइप की वो चीज़ें सर्च करना शुरू कर देता है, चीज़ें इकट्ठी करना भी शुरू कर देगा। अगर उसने फैन का यूज़ करके हैंग करना है तो रोप या फिर कोई दुपट्टा या फिर कोई ऐसी चीज़ें, वो अब मीम्स मतलब चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देगा उस स्टेप की ओर जाने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सीरियस। तो आपको ये वाली चीज़ें देखनी है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसी किसी चीज़ में इंडल्ज तो नहीं है। इसके बाद जो होता है सडन इम्प्रूवमेंट, उसका मूड एकदम से काम हो जाएगा। जो लोग यूजुअली बहुत अपसेट थे, बहुत झगड़ा कर रहे थे, बहुत परेशान थे, रो रहे थे, मम्मी पापा दिमाग खराब करते हैं, टीचर्स मुझे समझते नहीं है, मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी फीस नहीं भरी जा रही है, या मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ झगड़ा कर रही है, कुछ भी, वो कंप्लेन करना एकदम छोड़ देगा स्टूडेंट। एकदम से सडन कामनेस आ जाएगी और हो सकता है वो बहुत चीयरफुल भी रहे, बिकॉज अब उसने डिसीजन बना लिया है और उसको समझ में आ गया है कि मेरी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएंगी, तो वो जो स्ट्रेस था ना वो रिलीव होना शुरू हो गया है, बिकॉज नाउ ही नो कि अब मुझे ये सारी चीजें परेशान नहीं करेंगी। रेकलेस बिहेवियर में इंडल्ज हो सकता है, बिकॉज वो एक फियर जा चुका ना लाइफ का, अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसे मरना है। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करे, या फिर कहीं से ड्रग्स ले ले, या फिर बहुत ही ज्यादा रेकलेस ड्राइविंग करे, या फिर हाई रिस्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, बिकॉज मौत का जो डर है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एंड द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट साइन इज सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट कर देगा। आप देखो कि बच्चा अजीब सा हो रहा है, ये तो अच्छे से साफ सुथरा बन के आता था, ग्रूमिंग थी इसकी बहुत अच्छी, अब ना ये नहा धो रहा है, हेयर कोम नहीं कर रहा है, लड़की ने कैसे शूज पहने हुए, इतने गंदे शूज हो रखे हैं इसके, इसने बाल कोम नहीं किए हुए हैं, या फिर दांत इतने गंदे हो रखे, इसने ब्रश ही नहीं कर रहा है, ये तो अपना ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो जब कोई अपना ध्यान रखना छोड़ दे, वो भी एक साइन होता है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, अब इसने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। ये सारे जो साइंस हैं, सिंबल्स हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, आप अपने आसपास वाले लोगों में नोटिस कर सकते हो। कई बार ना हमें लगेगा, आप यहाँ पे ऑडियंस बैठे हो इंक्लूडिंग मी, यार ये वाली चीज तो ना मेरे में भी है, कोई एक आधी चीज मिल सकती है। तो ओनली वन साइन, डू नॉट प्रिडिक्ट दैट। पैटर्न ऑफ साइन, पैटर्न जब बनता है ना, सो दैट इज द प्रिडिक्शन कि हाँ सुसाइड आइडिएशन या फिर सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो इन नियर फ्यूचर पॉसिबल है ना। हम कई सारे साइन देते हैं अपने आसपास वालों को, हम फोटो क्लिक करना छोड़ देंगे, या फिर हम अपने लिए शॉपिंग करना छोड़ देंगे, या हम अपने लिए जीना छोड़ देंगे, जो चीजें हमें पहले पसंद थी अब हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, हम सबके साथ होती है, हम सबकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, बट वो चीज जब एक या दो चीज पे नहीं रुकती है और वो पैटर्न बन जाता है बिहेवियर का, हम उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी ए सीरियस थिंग। नाउ आप सबको इंडिया के नाम से याद रखना है। एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई है मैंने कि हाँ ये वाले साइंस जो है देख सकते हो। सबसे पहला आइसोलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया, स्टूडेंट अकेला तो नहीं बैठा है, अकेला अकेला तो नहीं रहता है, सबसे आइसोलेशन वाली चीज हमने नोटिस करनी है। नेग्लेक्ट, अपनी हाइजीन को, साफ सफाई को, अपनी अपीयरेंस को, मैं कैसा दिख रहा हूँ दिख रही हूँ, उस चीज को कोई नेग्लेक्ट करने लगता है ना, ये वाली चीज। डिक्लाइन, अटेंडेंस एकदम से लो हो गई है, मार्क्स बहुत ज्यादा लो हो गए हैं, बहुत अच्छा था बच्चा, अच्छे मार्क्स थे, टॉपर था, और अभी जो है मार्क्स इसके बहुत लो हो रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो गई है। वो सारी चीजें हमने देखनी है, डिक्लाइनमेंट तो नहीं हो रही। देन अगेन इंटेंट, प्लान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक तो नहीं कर रहा है वो, होपलेसनेस वाली, हेल्पलेसनेस वाली, या फिर मरने वाली, बर्डन कम करने वाली, पीछा छुड़ाने वाली, कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही है। एंड अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है मूड, फीलिंग्स उसकी बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हो रही है, किसी दिन बहुत खुश, किसी दिन एकदम परेशान, किसी दिन बहुत गुस्सा और एक दिन एकदम काम। अफेक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस होना भी एक साइन होता है कि स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग मेंटली। ओके, सो दिस इज ए चेकलिस्ट, आप इससे याद रख सकते हो कि ये वाली चीजें जो है हमने स्टूडेंट्स में नोट डाउन करनी है। ये एक मैंने छोटी सी स्लाइड बनाई है मिथ्स और फैक्ट्स को लेके। हम लोगों को लगता है, सबसे पहला मिथ ये है कि दे आर जस्ट बीइंग ड्रामेटिक और सीकिंग अटेंशन, कि बच्चे ना बस अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है। फैक्ट क्या है? सुसाइडल टॉक इज डेंजरस क्राई फॉर हेल्प।
जब वो बात कर रहे हैं ना, वो सच में हेल्प चाह रहे हैं। वो उनका तरीका है बताने का कि हाँ, वी नीड हेल्प। पीपल इन पेन आर डेस्परेट टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। डिसमिसिंग देम इंक्रीज देयर सेंस ऑफ आइसोलेशन। आप उनको नहीं सुनोगे या आप उनको इग्नोर करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं अकेला ही हूं, कोई भी नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट। सेकंड मिथ जो लोगों को लगता है कि अगर मैंने सुसाइड के बारे में बात करी तो उनके दिमाग में यह आइडिया आ जाएगा कि हाँ, सुसाइड भी किया जा सकता है। बात करने से कभी सुसाइड का आइडिया नहीं आता है, ये एक मिथ है। फैक्ट क्या है? आस्किंग डायरेक्टली इज प्रोटेक्टिव। अगर आप उसे सीधे पूछोगे ना कि यार आप बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या, मैं ये चीजें आप में देख रही हूँ, तो इससे क्या लगता है कि हाँ, हमें कोई नोटिस कर रहा है और कोई हमारी केयर कर रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्ट कि आप अगर उनसे बात करोगे तो इससे यही पता चलेगा कि आप उनकी केयर कर रहे हो। And it gives them permission to speak openly and provides a pathway to professional help. So, and the third myth जो है, only counselor can help. मैं तो just एक क्लर्क हूं, या मैं तो just एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, या मैं तो just एक टीचर हूं, मैं कोई काउंसलर थोड़ी ना हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये एक मिथ है। आप लोग भी हेल्प कर सकते हो। You don't need to be a therapist to save life. You need to be a gatekeeper जो कि आइडेंटिफाई करके रेफर कर दे। बस आपने आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट को कि यस, ये वाले स्टूडेंट का मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, जाके उससे बात करो और उसे सर के पास लेके आओ। बिकॉज हमारे कॉलेज में एक प्रोफेशनल काउंसलर अभी नहीं है ना? तो आपका काम इतना है, आप इतना भी कर दोगे तो भी आपकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। ये कभी नहीं सोचना कि मैं काउंसलर नहीं हूं, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं, मैं क्या ही कर लूंगा। हाँ, मुझे लग तो रहा था ये बच्चा ऐसे ऐसे है, पर मुझे क्या पता था ऐसे कर लेगा। आपने नोटिस किया, आपने देखा, पर आपने इग्नोर कर दिया। आपको लगा ये तो मेरा काम ही नहीं है, एंड नाउ द स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद लाइफ, है ना? ऐसी कोई चीज नहीं होने देनी है हमने। अगर हमें लग रहा है ऐसा कुछ सीरियस है तो हमें सिर्फ रेफरल करना है, आपको उसे सही जगह तक लेके जाना है, एंड देन यू गाइज आर फ्री। 3 स्टेप प्रोटोकॉल, ये हमारा लाइफ सेविंग एक्शन प्लान है। सबसे पहला है क्वेश्चन। आप जब पैटर्न ऑफ बिहेवियर नोट करते हो तो हमने सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेना है स्टूडेंट से। एक प्राइवेट प्लेस या अकेले में, सबके सामने नहीं, 3-4 लोग हैं, सबके सामने बात नहीं करनी है कभी भी, उससे थोड़ा सा अकेले में हमने बात करनी है और हमने कंसर्न एक्सप्रेस करना है और हमने उससे बात करनी है। यार, मैंने नोटिस किया आप क्लासेस मिस कर रहे हो और आप परेशान से रहते हो और आप कल भी वहां पे अकेले बैठे हुए थे, आप छत की तरफ भी गए हुए थे। देखो बच्चा, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि आप परेशान हो, कोई बात है तो आप मुझे बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। आपने बिहेवियर के 4 बार देख लिया इंसिडेंट, कोई 5 बार इंसिडेंट देख लिया, आपको पक्का पता है कि अभी कुछ गड़बड़ है इसके साथ, ये परेशान है, ठीक है? तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड, हमने उसको परसुएड करना है, हमने उसको समझाना है, हमने उसको मनाना है, हमने जेन्युइन केयर शो करनी है और हमें उसको बताना है कि मुझे पता है आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, चीजें बहुत मुश्किल हैं मैनेज करनी, बट हमारे यहाँ पे कॉलेज में आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज रेफर। आप उसे रेफर करो, आप उसे सर के पास लेके जाओ या कोई काउंसलर है उसके पास लेके जाओ, जो भी अथॉरिटी है उसके पास लेके आओ, वहां पे आपका काम खत्म होता है। सो दिस इज ए 3 स्टेप। आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्ट जाके बात करनी है एंड उसे परसुएड करके मना के हमने रेफरल तक लेके आना है। सो दिस इज लाइक सिंपल। एंड मोर देन एडमिनिस्ट्रेशन, द नॉन अकेडमिक स्टाफ की जो एडवांटेज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही उनके साथ क्लास में होते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम तो नॉन टीचिंग वाले हैं, हम क्या करेंगे? आपको लगता होगा कि हम तो नॉन टीचिंग वाले हैं। नॉन टीचिंग वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट। क्लासरूम में बच्चे का बिहेवियर ना मैनिपुलेटिव होता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, बिकॉज टीचर के सामने स्टूडेंट को एक डिफरेंट टाइप का एक बिहेवियर करना पड़ता है, वहां पे वो नेचुरल नहीं रह सकता। बट क्लास से बाहर निकलते या टीचर की क्लास से बाहर निकलते ही वो जो बिहेवियर होता है वो ओरिजिनल होता है हमेशा, है ना? तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का ओरिजिनल बिहेवियर, उनका ओरिजिनल फेस एक्सप्रेशन देखता है। सो
आपके यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, सो वरना जो वार्डन होते हैं, हॉस्टल वार्डन या मेस वाला स्टाफ जो होता है, कैंटीन अगर यहाँ पे है, कैंटीन में जो स्टाफ होता है, आपके ऑफिस में जो स्टाफ होता है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस वाले जो होते हैं, इनका एक काम है ऑब्जर्व करना। वो बच्चे को, हर बच्चे को देखते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। वो लड़की रोते हुए जा रही थी, या वो लड़का कल बहुत ज्यादा गुस्से में बाइक स्टार्ट करके निकला है, ऐसा कुछ हुआ है, अगले दिन फिर ये हुआ है, अगले दिन ये हुआ है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं हम नोट करते हैं। एंड फैकल्टी, दिस इज फॉर टीचिंग्स, दिस स्लाइड पर्टिकुलरली आई हैव पुट फॉर टीचर्स ओनली। टीचर्स को लगता है कि हमारा काम तो सिर्फ क्लास में पढ़ाना है, एग्जाम प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम चेक करने हैं, एंड दैट्स ऑल, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपकी ड्यूटी सिर्फ मार्क्स देने, ग्रेडिंग करने और पढ़ाने से कहीं ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि हम इतने रूड हो जाते हैं कि बच्चे हमारे पास आ नहीं पाते। वी हैव टू बी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट। आप उनको बोलो, क्लास में डायरेक्ट मैसेज दो कि आप मेरे पास क्लास के बाद भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में ही है, या फिर आप मेरे कैबिन में आ रहे हो, आप मेरे ऑफिस में आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही आ रहे हो। आपको कोई काम सिर्फ अकेडमिक है तभी आप मेरे पास आओगे। यू आर ऑलवेज वेलकम इफ यू एवर वांट टू टॉक टू मी। आप परेशान हो, कोई घर में कोई इशू हो गया, या फिर आपको कभी भी लगे कि ये टीचर मेरी हेल्प कर सकता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। बट कोई बच्चा बहुत हिम्मत करके, बहुत परेशान होकर शायद आपके पास आ रहा है, और स्टाफ रूम में आप जाते ही, हाँ क्या है, आप अगर ऐसी टोन से बात करोगे तो फिर क्या होगा? वो कहेगा सर कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। एंड शायद वो बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आया था, और वहां से जब वो वापस गया है तो एक और दरवाजा बंद, और वो बैटल जो यहाँ पे चल रही है वो हारना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो जो ऑफिस आवर्स हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट के डाउट्स के लिए नहीं, आप उनको एक अच्छी सी स्माइल के साथ, कैसे हो बेटा, कैसे हो बच्ची, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है क्लास में कोई बिल्कुल लोस्ट बैठा हुआ है, लोस्ट ही चल रहा है, उसको बोलो आप ना क्लास के बाद एक बार मेरे से आके मिलना, बस वो आएगा, ओपन अप करेगा आपके साथ। कई बार इतना भी बहुत होता है, किसी को लगे कि हाँ यार कोई तो है, एक होप तो है, एक उम्मीद तो है। हमें इतना ही उनको दिखाना है कि यस वी आर देयर। एंड यू नेवर नो कि शायद आपने कॉरिडोर में जाते जाते किसी बच्चे की ओर स्माइल कर दी, और उस स्माइल ने ही उसका दिन बना दिया। एंड यू नेवर नो कि आपकी एक छोटी सी स्माइल ने, या फिर आप एक छोटे से जेस्चर ने, आपने उससे पूछ लिया कि आप कैसे हो, इसी ने उसकी लाइफ बचा ली। यू नेवर नो उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके घर में कितना कलेश हुआ है आज, या उसके साथ आज आते हुए बस में क्या हुआ, या किसी ने उसको परेशान किया है। कोई लड़की है जिसके साथ कुछ ऐसी चीज हो गई है कि वो किसी को बता नहीं पा रही है, और वो इतनी ज्यादा परेशान है, आपको नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, तो आपको साइन दिख रहे हैं, उनके फेस पे लग रहा है कि कुछ रॉन्ग है, सो एटलीस्ट स्माइल। प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, हमें अपने कॉलेज में एक कल्चर डेवलप करना है रेजिलियंस का, कनेक्टेडनेस का कल्चर कब होता है? जब हम कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटीज, तो वहां पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे का पता चलता है। लाइफ स्किल जेनजीज के अंदर बिल्कुल खत्म है, इसीलिए यूजीसी को एक कोर्स मैंडेटरी चलाना पड़ रहा है कि जेनजीज को लाइफ स्किल सिखाओ। एंड लाइफ स्किल यू नो क्या होते हैं? लाइफ स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन कैसे लेना है, एंगर कैसे मैनेज करना है, डिसीजन आपका गलत हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, किसी से बात कैसे करनी है, आप परेशान हो तो क्या करना है। जब बेसिक जो चीजें हमने शायद हमें पता भी नहीं हमने वो कब में सीख ली, वो उनको नहीं आती हैं, उसके लिए प्रॉपर कोर्स चलाया जा रहा है। एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स के पास ये कोर्स आता है उनको लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, वो इसको बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो 2 क्रेडिट का कोर्स है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तुम लोग खुद कर लेना। तो उनको आता ही नहीं है कुछ, और टीचर ने बोल दिया कि आप ये वाला जो है ये खुद कर लेना। सो लाइफ स्किल वाली जो चीजें हैं वो हमें जेनजीज को सिखानी पड़ेंगी, हमें उनको बताना पड़ेगा भाई डिसीजन कैसे लेते हैं, लाइफ में मैसअप हो गया है तो फिर क्या करना है, परेशान हो रखे हो तो फिर ऐसे में क्या करना है। परेशान होने का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ गए, पार्टी करी, दारू पी ली,
परेशान होने का मतलब ये नहीं है किसी ने बोला कि ये वाली चीज ट्राई करके देख तो सब कुछ भूल जाएगा। परेशान होने का मतलब ये है कि टू गो एंड फेस योर फियर, चैलेंज, प्रॉब्लम, उनको सोल्व करना होता है, ना कि उनको अवॉइड करना होता है। जेनजिस की एक अप्रोच है, प्रॉब्लम आई और उसे एस्केप कर लो, वहां से भाग जाओ उस प्रॉब्लम से, उसको टेम्पररी रिमूव कर दो, ना कि उसको सोल्व करो। सो दिस थिंग वी हैव टू टीच देम। एक्सेस टू केयर, उनको पता होना चाहिए कि अगर ये वाली हमें इशू आ रही है तो हमें किसके पास जाना है। कोई काउंसलिंग सेल है या हमारे कोई ऐसे सर हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं, तो उनको एक्सेस होना चाहिए कि वो जा सके। कल्चरल स्पिरिचुअल बिलीफ जो कि सुसाइड को गलत मानते हैं, उनको ये चीज होनी चाहिए कि हाँ हमारा ये कल्चर है, वी आर प्राउड सिख, वी आर प्राउड हिंदू, और हमारे धर्म में जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप के साथ गलत करना सबसे बड़ा पाप है, ये चीज गलत है। तो वो वाली चीजें भी उनके दिमाग में होनी चाहिए। और स्टाफ क्या कर सकता है, बिलोंगिंगनेस इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। हम विद इन क्लास में भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपको लगे कि यार ये लड़की ना अकेली रहती है, ये लड़का अकेला रहता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम विद इन क्लास कोई भी ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं ताकि उसका औरों के साथ इंटरेक्शन हो, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसके भी फ्रेंड्स बन जाए। SEL हमने इंटीग्रेट करनी है, सोशल इमोशनल लर्निंग, जो कि जेनजिस को नहीं आती है, वो हमने उनको सिखानी है। एंड बी विजिबल, आपको सिर्फ क्लास लेके अंदर नहीं बैठे रहना है, आप थोड़ा बहुत कॉलेज में घूम लो, कॉरिडोर में बच्चे जहाँ पे बैठे हैं, कैंटीन में, आप थोड़ा बहुत इधर उधर जाके ऑब्जर्व कर लो, स्माइल कर लो, पूछ लो ऑल वेल ऐसे करके। सो दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। एंड नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड माई लास्ट स्लाइड। सो मैं इसे कंक्लूड करते हुए यही बोलूंगी कि आपने जो हमने वार्निंग साइंस किए हैं, नोटिस हमने समझे हैं थ्रू आउट दिस लेक्चर एंड सेशन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट में 2 या 2 से ज्यादा देख लिए हैं, डायरेक्टली गो एंड टॉक टू देम, डायरेक्टली गो एंड आस्क एंड रेफर करो उनको। इसके बाद मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के साथ करूंगी। हम कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे, उसमें कुछ बिहेवियर होंगे, आपको लगे कि ये वाला बिहेवियर रेड फ्लैग है तो आपको हैंड रेज करना है, आपको बताना है कि दिस इज ए रेड फ्लैग। आपको लगे कि ये तो नॉर्मल वाला स्ट्रेस है, क्योंकि नॉर्मल वाला स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना एंड एक बिग वाला स्ट्रेस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या फिर जो कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव थिंग प्लांट कर सकता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो this is the activity and see the statement 1. You have to tell me it is a green flag or red flag. A student misses 2 class lecture because they were up late finishing a term paper submit कराना था उनको, तो इसलिए उन्होंने 2 लेक्चर मिस कर दिए। Is it a red flag or green flag? It is a green flag. So you don't need to worry. काम ही तो कर रहे थे, 2 लेक्चर मिस हो गए, it's okay. Now the second statement, a student usually जो कि साफ सुथरा रहता है, नहा नहीं रहा है और उसने साथ में खाना खाना छोड़ दिया है, स्टूडेंट्स के साथ में जो वो खाना खाता था, और उसने सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट किया है कि इट इज टू मच, इट्स ऑल टू, इट इज ए रेड फ्लैग। यहाँ पे हमें 2-3 पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। वेग वाला उसने शो कर दिया है कि मेरे से नहीं संभल रहा है, उसने लोगों को अवॉइड करना, डिक्लाइनमेंट आ गई है, अलूफनेस आ गया है, विड्रॉल आ गया है उसमें, ठीक है। नाउ सी एक्टिविटी, यू हैव टू सी। एक हॉस्टल में स्टूडेंट रहता है, उसे देखा काफी सारे लोगों ने कि वो कॉमन एरिया में उसका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था ब्रेकअप के बाद। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? इट्स ए ग्रीन फ्लैग। ब्रेकअप के बाद कोई भी रोएगा ही। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। नाउ now the same student, यहाँ पे एक इवेंट है। now see, okay, the last activity, the student from scenario C, यही स्टूडेंट जिसका ब्रेकअप हुआ है और जिसको रोते हुए लोगों ने देखा है। सेम स्टूडेंट बाद में कुछ दिन के बाद लोग नोटिस कर रहे हैं कि उसने अपना जो प्राइज में लैपटॉप जीता था ना, उसने वो डोनेट कर दिया है एंड उसने क्लासेस भी अटेंड करना बंद कर दिया है। और उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि फाइनली मुझे पता चल गया है कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इट्स अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज ब्रेकअप हो गया, रो दिया, इट्स ओके, बट उसके बाद उसने ये सब भी करना शुरू कर दिया। नाउ इट इज ए रेड फ्लैग। ओके, सो
Dear all, will you be able to identify the red flags in students and the college campus? For this we just need one thing, that is sensitivity. हमें सिर्फ sensitivity चाहिए और कुछ भी नहीं. अगर हम sensitive हैं for them, then we will be able to see कि हाँ they need help or they are not well. वो हर रोज के जैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ तो different है. We just need that humanity in ourselves for them. Okay, with this I'll conclude my session. Thank you so much for attending. Thank you so much for being a wonderful audience. Thank you so much. ਮੈਡਮ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਫੋਰ ਸੁਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, 2 ਭਰਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਨਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੋਨ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੂਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਟ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹੇ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਉਹ ਪੀਂਘ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਫॉर ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਵਾਲੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਂਘ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 2-3 ਟੀਚਰਸ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਔਨ ਅਵਰ ਪਾਰਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਾਹੇ ਵਾਲੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਂਘ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੁਮਾਰੋ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਅਗੇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਆਵਰ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਂਘ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਫਾਹੇ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਦੇ 64 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ YouTube ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ them। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਫॉर ਅਦਰ ਕਾਲਜਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕਸ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ IQAC ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਨਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 22 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਤੋਂ 2, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਐ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ KYC ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ KYC ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਵਰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਨੋਟਵਰਦੀ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਦੇਅਰ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਵਸਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਈਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿਨਕ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਮਾਈਕ, ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਊਟਬਰਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਊਟਬਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਊਟਬਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much, ma'am, for delivering this beautiful lecture. बाकी जितने भी आपने फैक्टर्स बताए हैं हमने विच ट्रिगर्स स्ट्रेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज, है ना, तो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा तो वो प्रेशर कुकर की तरह एक्सप्लोड होता है ना। तो कुछ बच्चों की ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती है वीक जो उसको सह नहीं पाती है ना। तो आई थिंक उनके अंदर वो जो सुसाइडल टेंडेंसीज जो क्रिएट होती हैं, है ना, तो उनमें कुछ हमें जो देखने को मिलते हैं सिम्टम्स, जो जैसे आपने बताया है कि जो क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने उन सिम्टम्स को नोट किया और एड्रेस किया है बतौर पेरेंट है चाहे टीचर है, तो वो बच्चा सुसाइड से करने से बच जाता है। लेकिन वो बच्चे के अंदर जो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस हैं उसके ब्रेन हेल्थ पे या ब्रेन स्ट्रक्चर पे, तो उसकी वजह से अलग अलग तरह की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, जैसे ओसीडी हो गई, शिज़ोफ्रेनिया है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये आगे आफ्टर लाइफ में उसको देखने को मिलते हैं आफ्टर 20 और 25। तो स्ट्रेस एडोलेसेंस एज में स्ट्रेस को मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, ब्रेन हेल्थ इश्यूज़ या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, उससे बचा जा सके। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ सभी टीचर्स को कि क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों को पर ऐसे सिम्टम्स देखना, उसको एड्रेस करना। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਵੇਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਲੂ ਵੇਲਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਡਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। कैन यू एक्सप्लेन दिस? ये जो है इसे साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट बोलते हैं मास हिस्टीरिया। एक जैसी फीलिंग बहुत सारे लोगों के अंदर जनरेट करना, वो होता है मास हिस्टीरिया। इसमें क्या होता है कि एक पैटर्न सेट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट नोइंग द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो उसी पैटर्न पे उसी रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं। एक मास हिस्टीरिया का केस हुआ था जिसमें पूरी फैमिली के 11 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था इन दिल्ली में भी। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर केस। यही एक चीज़ है। और टीनेज में क्या होता है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं होती। जो फ्रंटल कोर्टेक्स है हमारा, जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, ये 24 की एज तक पूरा डेवलप होता है। उससे पहले वाली एज में हम डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही क्राउड जो है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं एंड दे फाइंड इट ओके, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू this particular thing. So that's why it is very important to take care of your kids, your students, कि वो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन गेमिंग में कौन सा गेम खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज उसका कॉन्सिक्वेंसेज उनको पता होने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि हाँ इसका क्या रिजल्ट होगा। उनको पता है कि हाँ हमें बिल्डिंग से छलांग लगानी है और वो लगा देंगे, उनको ये भी पता है कि उसके बाद क्या होगा। सो दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो कि हमें टेक केयर करना है, हमें ऑब्जर्वेंट रहना है कि हमें उनको इन चीज़ों से बचाना है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। बस कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि वो अपना डिसीज़न लेने के काबिल नहीं है। तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तो हमें टेक केयर करना पड़ेगा, वरना एक होता ना कि एक भीड़ जा रही है उधर और वो सब बस उधर ही चल पड़ते हैं विदाउट एनी लॉजिक। तो इसके पीछे कोई इतनी बड़ी हाँ जी नहीं मैम, सुसाइड केसेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। सुसाइड तो 60 ईयर ओल्ड पर्सन भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है। एक प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारा ब्रेन जो चाहिए होता है, यस मैम, फ्रंटल कॉर्टेक्स होने का मतलब, डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन नहीं करोगे, आप डिसीजन रेशनली लेने लगते हो। तो वो रेशनल डिसीजन उसको हो सकता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अभी यस एज इज़ नॉट ए मैटर। द थिंग इज़ दैट फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हेल्प करता है डिसीजंस को रेशनली लेने में।
बट हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरी रेशनैलिटी सबके लिए डिफरेंट है। आपको लगता है कि आपकी रेशनैलिटी जीने में है, बट उसको हो सकता है कि उसको लगता है कि उसकी रेशनैलिटी मरने में ही है, बिकॉज उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है एंड इट्स नॉट वर्थ लिविंग दैट वे। जी सर। ਸਟੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਮਤਲਬ 15 हम्म ਬਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? इंडिया में एक अभी जो साइकोलॉजी है, अभी धीरे धीरे आफ्टर कोविड जो है इसको रिकग्निशन ज़्यादा मिली है। इससे पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम कनेक्ट करते थे, किसी देवी ने देवता ने श्राप दे दिया है, इसको किसी ने कुछ करवा दिया है, इसके साथ इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लोग उस तरीके से देखते थे। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी कोई बीमारी हो सकती है। पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की ओर से एंड इंस्टीट्यूशंस में भी लोग एफर्ट डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, वो डिप्रेशन है या वो एंजाइटी है या उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो टाइम इज़ टेकिंग, बट दैट इज़ ऑल अप टू अस कि हम लोग, हमारी शायद इससे पहले वाली जनरेशन वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होती है और मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प की ज़रूरत होती है। हमें साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की और साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें अब रिकॉग्नाइज हो रही हैं, तो सर इसलिए धीरे धीरे इट विल टेक टाइम। ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। यस। ਸੋ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੈਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है, क्योंकि रिकॉग्निशन अब आने लगा है। यस, इंस्टीट्यूशंस में भी हम बात करते हैं। गवर्नमेंट अपनी ओर से इनिशिएटिव्स ले रही है धीरे धीरे। हर स्कूल में, अभी आपने देखा होगा हर स्कूल में मैंडेटरी कर दिया है काउंसलर का होना। ऐसे ही धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि जब कॉलेजेस के पास भी एक प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होगा टू डील विद द इश्यूज़। सो इट विल टेक टाइम। आपको पता है गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है उसमें टाइम लगता है। गवर्नमेंट के पास दे नो कि हाँ इतने इश्यूज़ हमारे हो रहे हैं, दे आर टेकिंग स्टेप्स, बट जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है उसमें टाइम लग जाता है। मे बी इट विल टेक सम ईयर्स। सो टिल द टाइम ओनस इज ओनस। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आसपास वालों का कैसे टेक केयर करते हैं। हम सब कुछ गवर्नमेंट पे या अथॉरिटीज़ पे नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। वो तो कितने ही लोगों को करेंगे, तो वी हैव टू बी अवेयर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3177/2025 ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ direction to the students. So ma'am, thank you so much for giving us such informative, enlightening lecture in the form of a workshop. So thank you very much. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, so that we will give a token of love to our chief guest. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼। First of all, I would like to thank our distinguished speaker, Assistant Professor Pooja Tyagi ji, Department of Psychology, GNDU Amritsar. Madam, it was very informative and thank you for sharing deep insights of enigmatic mysteries, how the teenagers' brain work. It is enigmatic for ourselves and it was very disturbing for me when you showed that letter of a 10th year girl who could hardly write her sentence,
but she had that. She would. It cannot be called a brave attempt. It is not a brave attempt because living a life is a brave attempt, and quitting it, it is not a brave attempt. So I assure you that we will take care of these tender saplings and we will assist them mentally for their mental health. Thank you, Principal Sir, Professor Ashwini Bhalla, who has always been an inspiring force for us, and he has made every aspect successful and accessible for us so that we can be trained to tackle all sorts of hardships and difficulties. And this day is historical because this is the first time that you are giving the FTP on mental health in all over Punjab. And great applause for Principal Ashwini Bhalla sir and Professor Pooja Tyagi ji. I have tailored a nursery rhyme to suit my topic. It goes like this. Ding dong bell. You have heard this nursery rhyme, I know. Ding dong bell. Why do we let ourselves in the well? The well can be symbolized as stress. What put us in? Little things such as expectations, assumptions, impositions, and demands by the society. These let us in. Little Johnny, it can be called a Johnny or a Tommy. What a naughty boy. Naughty boy kaun hua? Our stress that disturbs our mind and make our life more hard. Life is not a cup of tea. It is already very tough. So we have to equip ourselves to become an expert driver. We all are immature to lead our life. As we move further gradually in our life, all the challenges make us strong. Stress is called as a sandpaper because it removes the rough edges and make us smooth to lead our life skillfully. Thank you so much, ma'am. It also depends upon our diet. जैसे सात्विक भोजन जो कहते हैं कि we are what we eat, we think what we eat. So we should eat healthy. We should go for fruits. I always tell everyone to eat more fruit, more veggies, not to go for cheese, no pizzas, no burgers. But our young generation, the Gen Z, they are eating such junk food. And these junk food give them the junk thoughts. So first and foremost, my request to Principal Sir is that we should give fresh fruits in the canteen for our students. एक ठेला सर ले आओ यहाँ पे ताकि students चाय की जगह सर tomato soup will go. Students will love. We have to train them what to eat, what to put in your mind. Like we train them to what to put in your mind, we have to train them what to put in your mouth. That will give them positive thoughts. जो revenge है, जो jealousy है, ये सब खत्म कर देगी. Once our gut is healthy. Next, there is थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो मुझे बता देना. There is a 3-3-3 rule because stress. To combat stress, we have to follow a 3-3-3 rule. Once you get into the stress, you have to see the 3 good things in your surroundings. You have to touch the 3 good things in the surroundings, and you have to trigger your mind for the positive thoughts. This is the 3-3 because our brain chemistry works on positive thoughts. So always dispatch those negative thoughts and seal them. That can hurt your personality. So I assure you, sir and madam, that we will take proper care of our tender hearts, our students, and we will do unnumbered kinds of kind good deeds for them. Because they give us rose, but next day
we will give them love and care. Thank you so much.